شام کو جب میں اپنی چھت پر گیا، جب امی نے مجھے کہا کہ ہماری کیبل کل سے نہیں چل رہی، تم جا کر دیکھ لو کہ آخر کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں چھت پر گیا اور ابھی کیبل کی تار کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے ہی میری نظر کشف بھابھی پر پڑی، جو میرے چچا زاد کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، مگر کشف بھابھی بہت شوخ مزاج کی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق کرتی رہتی۔ ان کا میاں فوج میں نوکری کرتا تھا، اب وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، اس لیے کشف بھابھی اپنی نند مائرہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پانی لگا لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے کافی کپڑے گیلے ہو چکے تھے، مگر ان کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ مائرہ ابھی طالب علم تھی اور کشف بھابھی کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ کشف اور مائرہ کو ہر وقت ساتھ یوں ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر میرا وجود بہت بے چین ہوتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کمسن مائرہ کو جا کر ابھی اپنا بنا لوں اور اس سے اپنی طلب مٹا ڈالوں۔ مائرہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی رنگت بھی بہت زیادہ سفید تھی اور اس کے ہونٹ پنکھڑی کی ماند گلابی تھے۔ اسے قدرت نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا، مگر وہ بہت عجیب طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے جب بھی دیکھتی تو فوراً منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی بھی وہ میرے سامنے ٹک کر کھڑی نہ ہوتی۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں مائرہ کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کا اچھے سے استقبال کروں گا، مگر مائرہ تھی کہ ہر بار میرے ہاتھوں سے بچ نکلتی تھی۔ یوں میں ہمیشہ ہی خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔ مگر آج جب میں نے مائرہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق کر رہی تھی، ان کے ذہن میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے چچا کی وفات ہو گئی تھی اور کشف بھابھی کا شوہر بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وہ لوگ گھر میں اکیلے تھے۔ کشف بھابھی ہر وقت مائرہ کے ساتھ چپکی رہتی تھی، جس وجہ سے مجھے کچھ خاص موقع نہیں مل پاتا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں 19 سال کا ہوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے بھی کام ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا، مگر بابا نے مجھ پر ہر وقت پہلے ہی کافی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں، کیونکہ میں اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ امی کو تو میری شادی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کہتی رہتی کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ میری بڑی بہن شگفتہ کا بھی رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ امی کہتی تھی کہ شگفتہ کی شادی کے بعد تمہارا بھی رشتہ کسی کے ساتھ پکا کر دوں گی، مگر میں جب بھی مائرہ کی بات کرتا تو امی مجھے سختی سے ڈانٹ دیتی کہ کون سا تمہارے چچا نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رکھے تھے، جو اب میں اس کی بیٹی کو بیاہ کر اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی۔ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جبکہ میں مائرہ کو بے حد پسند کرتا تھا۔ میں کیبل کی تار ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا، جو مجھ سے ٹھیک ہونے والی نہ تھی۔ تبھی میں نے کیبل والے کو فون کر کے گھر بلا لیا اور خود سودا لینے باہر چلا گیا۔ مجھے بازار میں سیلون پر بال سیٹ کروانے تھے، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا اور میرے ذہن سے یہ خیال ہی نہیں نکل رہا تھا کہ میں نے کیبل والے کو فون کیا تھا اور وہ گھر آ چکا ہوگا۔ کافی دیر بعد جب میں واپس آیا تو امی سے کیبل والے کا پوچھا۔ امی نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا، البتہ ہمسایوں کے دروازے پر بیل ضرور بجی تھی۔ میں جلدی سے وہاں گیا تاکہ چچی سے پوچھ سکوں کیا غلطی سے کیبل والا یہاں تو نہیں آ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں 400 خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں اندر آیا اور دیکھا تو چچی اور مائرہ گھر میں نہیں تھی، جبکہ کشف بھابھی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے ایک آنکھ سے جھانک کر کشف بھابھی کے کمرے میں دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کیبل والا لڑکا کشف بھابھی کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا۔
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कश्यप भाभी बिल्कुल बेसुध होकर इतना ज्यादा सुकून हासिल कर रही थी कि मुझे आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सारा मंजर देखकर मेरा सर चकरा गया रह गया था, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा रहा था। जब वो दोनों फारग हो गए तो मैं साइड पर होकर चच्ची के कमरे में चला गया ताकि वो केबल वाला मुझे ना देख सके। जब वो केबल वाला घर से बाहर चला गया तो मैं जल्दी से कश्यप भाभी के कमरे में घुस गया, जो अभी भी कपड़ों के कैद से आजाद उस बिस्तर पर पड़ी थी, मगर उन्होंने दरवाजा बंद ना किया था। शायद उनको यकीन था कि घर में उस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि मायरा और चच्ची शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और मुझे डांटना शुरू कर दिया कि यहाँ से चले जाओ। मैंने खींच कर उनका कंबल उतारा और जल्दी से उनके साथ शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जब से उन दोनों को ये सब करते हुए देखा था तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कश्यप भाभी इतनी ज्यादा अंदर से खूबसूरत होंगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। यूं तो उनके नैन नक्श भी काफी मासूम थे, मगर ये नजारा तो देखने लायक था। फिर मैं ये सब कुछ करते हुए उन्हें कह रहा था कि कश्यप भाभी, केबल वाले से करवाने की क्या जरूरत थी? आपके पड़ोस में आपका देवर भी रहता है, कभी हम पर भी ये मेहरबानी कर दिया करो। वो मजबूर थी और उसने किस कर मुझे पकड़ लिया था, मुझे खूब लुत्फ महसूस करवा रही थी ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं, और मैं तो जैसे जन्नत की सैर कर रहा था। मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़के को इस तरह से ना किया था और न कभी किसी को इस तरह से देखा था। मेरी नजर तो मायरा पर थी, मगर यहाँ तो मुझे कश्यप भाभी इतनी हसीन मिल गई थी कि उनकी भूख मिटाना अब मैंने अपना फर्ज समझ लिया था। अब मैंने उनसे झूठ बोल दिया था कि जब वो केबल वाले के साथ ये सारा खेल रचा रही थी तब मैं उन्हें अपने फोन में इसकी वीडियो बना ली है, और अब अगर उसने कभी भी मुझसे इस बात का इनकार किया या मुझे करने नहीं दिया तो मैं ये वीडियो उसके फौजी शोहर को व्हाट्सअप कर दूंगा। वो बहुत खौफजदा हुई और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि तुम्हें जितनी बार जब भी करना हो तुम मेरे साथ कर सकते हो, मगर मेरे शौहर को ये बात कभी भी मत बताना कि मैंने केबल वाले के साथ मस्तियां की है। फिर मैं उनसे कहने लगा कि अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो? जब आप मेरे साथ राजी हो तो भला मुझे किसको बताने की क्या जरूरत है? हम दोनों ने करते वक्त काफी सारी बातें की और फिर मैंने 2-3 बार जोर मारा तो मेरा भी अपशॉट हो गया था। फिर मैं नीचे उतरा और कपड़े पहनकर घर वापस आ गया। मैं भी जवान मर्द था, आखिर कब तक यूं ही बैठा रहता। मगर मैंने आते वक्त भाभी को सख्ती से मना कर दिया था कि अब किसी भी बाहर वाले से मुंह काला मत करवाना। मैं मौजूद हूँ, तुम्हें जब भी चाहिए मैं आ जाऊंगा, मुझे जब भी चाहिए होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो मेरी बात आसानी से मान गई थी। घर आकर मैं सुकून की नींद सो गया था। फिर शाम को जब मेरी आंखें खुली तो अम्मी मेरे पास चाय लेकर आ गई थी और कहने लगी कि तुम्हारा केबल वाला तो अब तक नहीं आया। केबल वाले का नाम सुनते ही मेरे जहन में फिर से वही ख्याल आ गया और एक बार फिर से मेरे जिस्म में बेचैनी दौड़ गई। मेरे वजूद को अब कश्यप की तलब हो रही थी, मगर मैंने फिलहाल खुद पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि उस वक्त मायरा और उसकी अम्मी घर पर मौजूद होंगी। सुबह में जब मायरा स्कूल के लिए रवाना हो जाएगी और चच्ची भी अपने कमरे में सोने चली जाएगी तो मैं चुपचाप से केशव के पास चला जाऊंगा और अपनी मनमानी करके वापस आ जाऊंगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। अशरफ अपने घर के कामों में मसरूफ थी और मैं छत पे चला गया। मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझसे नजरें चुराती फिर रही थी और मैं उसे गुस्से से देखने लगा। मुझे डर था कि कहीं वो इस बात से मुकर न जाए। अगर वो इस बात से मुकर गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो
बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जब वो मुझसे इस तरह नजरें चुराने लगी और मैंने कश्यप भाभी का सारा कुछ देख लिया था, तो अब मेरे जहन में एक दूसरा मंसूबा बन आया। फिर मैंने कश्यप भाभी को नंबर पर मैसेज किया कि मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। वो फौरन मान गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझे कश्यप भाभी को कोई देख ले इस हालत में। इसलिए उसने फौरन से मुझे रिप्लाई किया कि मुझे तुम्हारे हर शर्त मंजूर है, तुम बस मेरी जान छोड़ो और मुझे शर्त बताओ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे मायरा को हासिल करना है, आप मेरी इसमें मदद करें, वरना मैं आपकी पोल आपके ससुराल में खोल कर रख दूंगा, और ये भी सबको बता दूंगा कि मैं भी आपके साथ मस्तियां कर चुका हूँ और आप केबल वाले के साथ खुद ही सब कुछ करवा रही थी और अपनी मर्जी से। फिर वो बहुत घबरा गई, कहने लगी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अब बहुत ज्यादा खुश था। मायरा मेरी बीवी तो ना बन सकती थी, मगर मुझे जो मायरा से चाहिए था वो मैं हासिल करके रहना चाहता था, क्योंकि मायरा ने हमेशा ही मुझे नजरअंदाज किया था और अब मैं उसके साथ मस्तियां करके उसका गरूर मिट्टी में मिलाना चाहता था। फिर 2 दिन यूं ही गुजर गए। कश्यप भाभी का कोई भी मैसेज ना आया। मेरा फोन चार्ज पर लगा हुआ था। अचानक मेरे फोन के बेल बजी। जब मैंने फोन उठाया तो कश्यप भाभी मुझसे कहने लगी कि जल्दी से घर आ जाओ, जरूरी काम है। फिर मैं जल्दी से उनकी तरफ चला गया। कश्यप और मायरा घर पर अकेली थी। कश्यप ने मुझे कहा कि मैंने मायरा को अकेले कमरे में बिठा दिया है, अब तुम खुद ही जाकर दरवाजा बंद करो और उसे कन्विंस करने की कोशिश करो। मैंने अम्मी को भी खाला की तरफ भिजवा दिया है। आगे मैं कुछ नहीं जानती, मेरा काम यहीं तक था। अब मेरी जान छोड़ो। तो मैं जल्दी जल्दी से कमरे में चला गया। मैं जानता था कि कश्यप भाभी के साथ बगैर मैं कभी भी मायरा को हासिल नहीं कर पाऊंगा। कश्यप भाभी का ऐसा राज मुझे हाथ लगा था कि मैंने उनको मजबूर करके रख दिया था। फिर मैं कमरे में आ गया और कुंडी लगा दी। कश्यप भाभी को मैंने अपना कैमरा ऑन करके दे दिया था, ताकि वो खिड़की से हमारी वीडियो बना सके, ताकि मैं मायरा को ब्लैकमेल करके उसे इस्तेमाल करता रहूं। फिर कश्यप भी हमारी वीडियो बनाती रही और मैं जी भर के मायरा को इस्तेमाल करता रहा। वो चीखती चिल्लाती रही, क्योंकि वो एक कमसन लड़की थी और उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर मैंने कुछ भी ना सोचा और उसे मुसलसल कुचलता रहा जब तक मैं अपना काम सरअंजाम ना दिया। अब मैं पूरी तरह से खुश हो चुका था और मेरा भी अब गनुदगी में जाने लगी थी। तो मैंने उससे खुद को दूर हटा लिया और कश्यप से अपना मोबाइल लिया। उसका शुक्रिया अदा करके मैं घर वापस आ गई। अब जब भी मुझे मायरा की जरूरत होती तो मैं उसे धमकी दे देता और वीडियो की थोड़ी सी क्लिप भेज देता। वो इस खौफ में मुब्तला थी, इस वजह से वो मुझे कभी भी ना कर पाती और हमेशा मेरी छत पे चली आती। अब वो भी मेरे साथ राजी हो गई थी, क्योंकि उसके वजूद को कभी भी इस चीज की तलब होने लगी थी और मैंने अब उसको खुद का आदी बना लिया था।